اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معبد جو ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں گیل میں ملی ہی وانے آپ کو نقش و ایسے بیان کرو ہے۔ پاکیزہ دیکھن والو، کشادہ صورت، اچھی عادت، نہ پیٹ نکلو پڑو ہو، ملوک، آنکھ کالی، بال لمبا اور گھنا، آواز کچھ بھاری، لمبی گردن، بڑی بڑی آنکھ، بھاؤں آپس میں جڑی ہوئی، بال کالا گھنگریالا، چپ رہن والو تمیزدار، دور سو دیکھنا میں ملوک لگے، پیسو دیکھنا میں گھنوئی ملوک، اور میٹھی زبان والو، صاف صاف بولن والو، بولنا میں نہ فالتو بولے نہ گھٹ بولے، موتین کی لڑین کی طرح بات کرے، درمیانو قد، نہ گٹھو لگے نہ لبوترو، جب بات کرے ہے تو سب سنا ہاں، جب حکم دے ہے تو سب مانا ہاں، بولنا میں نہ کمی راکھے نہ فضول بولے۔ ایسو جامع نقشو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائی نے آنکھن دیکھو کھینچو نہ ہو۔ معبد کو ناک نقشو کھینچو ہوئے آج تک مثال ہے۔ ربیہ بنت معوذ وانے عمار بن یاسر کا پوتا سو کہی جے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لے تو نو جان تو کہ سورج نکل آیو ہے۔ جابر بن سمرت کہوے ہے کہ ایک پر چاندنی رات کو آپ لال چادر اوڑھے لیٹا ہویا ہا، میں کدی چاند ہے دیکھ تو کدی آپ ہے، آخر یہی بات سمجھ آئی کہ آپ چاند سو گھنا ملوک ہو۔ حضرت انس کہوے ہے کہ میں نے کئی ریشم کے ہاتھ نہ لگایو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہتھیلی سو گھنو نرم ہوئے، نہ ایسی خوشبو سونگھی جو آپ کی خوشبو سو اچھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا اور تہمت کے ساتھ چادر کندھان پہ لے کر رہا، پجاموں کدی نہ پہنو، موزہ جراب پہننا کی عادت نہ ہی، نجاشی بادشاہ نے چمڑا کو جراب بھیجا وہ آپ نے پہرا، پٹ کو سر پہ باندھا کریا، وا کے نیچے ٹوپی پہنتا، پٹ کو کالا رنگ کو ہو تو پٹکا کو پیچ کدی ایک کندھا پہ گر لیتا کدی دونوں کندھان کے بیچ، کدی مہنگو لباس بھی پہن لیتا، جو تحفہ میں ملتو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاوے ہے کہ آپ کا کپڑا کدی تہ بنا کے نہ رکھا، یعنی ایک ہی جوڑو ہو وہ یہ دھو کے پہن لیتا۔ فوتگی والے دن آپ نے جو کپڑا پہن رکھا ان میں بھی تھیگڑو لگو پڑو ہو، کپڑا پرانا ضرور ہوتا پر میلا کچیلا نہ ہوتا۔ کھانا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سیر کو شہد، زیتون کو روغن، کدو، گھی، پنیر، کھجور پسند ہے۔ آپ نے دمبا، مرغا، بٹیر، بکری، بھیڑ، اونٹ، گورخر، خرگوش اور مچھلی کو گوشت کھا رکھو ہو۔ دستی کو گوشت پسند ہو کہ جلدی گل جاوے ہے، کاکڑی بھی کھائی ہی، کدی کھجور یا کشمش یا انگور پانی میں بھجو کے کھا لیتا، پانی ہے پی لیتا، جو کچھ مل جاتا کھا لیتا، کھانا میں عیب نہ نکالتا، کھانوں پسند نہ آتا تو چھوڑ دیتا، برائی نہ کرتا، کدی تو 2 مہینے گھر میں چولہا نہ جلتو، دودھ اور کھجور پہ گزارو ہو تو، کہیں سے کوئی کھان کو چیز بھیج دیتا تو کھا لیتا، پہلے گھریان کو بھیجواتا، بدبودار چیز لہسن، پیاز، مولی پسند نہ کرتا کہ منہ سے باس آوے ہے، بات چیت میں بہت ہی پیاری بولی بولتا،
मीठी ज़बान से मीठी बात करता, रुक रुक के तसल्ली से बोलता, एक एक बात है 3-3 बार बोलता कि सबन के याद हो जावे। कभी भी फिजूल बात ना करी, ऊंची आवाज़ में ना हंसा, हंसन के मारे इतना मुँह खोलता कि दांत दिखता बस। बात करते वक्त हाथन से भी इशारों करता रहता, हैरान होता तो हथेली पलट के बात करता, हंसी की बात होती तो आँख नीची रखता। हज़रत अली फरमावे हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपने दिन का 3 हिस्सा कर रखा है, एक इबादत के मारे, एक दुनिया के मारे और तीसरा हिस्सा अपनी ज़ात के मारे। पर असल में तो ये तीसरा हिस्सा भी दुनिया के मारे ही हो। सुबह की नमाज के बाद मस्जिद में बैठ जाता, लोगन का मसला मसाइल सुनता, पूछता, जवाब देता। कोई अपना सपना सुना तो ताबीर पूछ दो, कोई शेर सुना तो हंसी मजाक की बात भी होती। आप लोगों को नसीहत की बात बताता। चाश्त की नमाज़ पढ़ के घर को चला जाता। होन अपना कोई काम करता, जूतो गांठ लेता, कोई कपड़ फटो होतो तो आप ही टक लगा लेता, बकरी को दूध काढ़ लेता, बाज़ार से कुछ लानो होतो तो आप ले आता। गैल में हर गाय को सलाम करके चलता, गुलामन के साथ बैठ के खानों खा लेता। काई बीबीलू आटा गूंदना में मदद दे देता, घर में बुहारी फेर देता। असर की नमाज़ पढ़ के थोड़ी थोड़ी देर के मारे सारी बीबीन का घरन में जाता। फिर जा बीबी के घर रात रुकना की बारी होती, वाह के घर जाता। ईशा तक सारी बीबी वाह घर में जमा हो जाती और सब बातचीत करता। ईशा की नमाज़ पढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातचीत पसंद ना करता और जल्दी सो जाता। तहज्जुद के वक्त जाग के तहज्जुद पढ़ता, सोने से पहले कुरान की कोई ना कोई सूरत तिलावत करता और दुआ पढ़ता, ए अल्लाह तेरो नाम लेके मरूँ हूँ और तेरो नाम लेके ज़िंदा हूँ। जाग के ऐसे कहता, हम और तारीफ़ अल्लाह के मारे, जाने हम मौत के बाद ज़िंदा करा और मौत के बाद ज़िंदा होके सबन ने वाई के मही जानो है। कभी ज़मीन पे नोई लेट जाता, कभी चटाई पे लेट जाता, कभी कई खाल पे, कभी कई मामूली सा बिस्तरा पे। सूदी करौंट पे लेटता, सूदा हाथ की हथेली है कल्ला के नीचे, गाल के नीचे धर लेता। आपके सिरहाने मिसवाक और वज़ू को पानी धरो हो तो कि नमाज के मारे चाहिए। नमाज मस्जिद में पढ़ता, अलबत्ता घर में भी लोगन से छुप के नमाज पढ़ता कि मोए देख के लोग भी घनी से घनी इबादत करना चाहेंगा, चाहे उनके बस में भी ना होवे और उनको तकलीफ़ होवे। जुम्मा को ज़ोहर की नमाज में खुतबा देता, मिंबर पे बैठ के खुतबा देता। पहले मिंबर ना हो तो अपनी लाठी की टेक लगा के खुतबा देता। जंगल में खुतबा देता तो कमान पकड़ के खुतबा देता, तलवार पकड़ के कभी खुतबा ना दियो। बीमारन की आयादत को जाता, वह की नब्ज़ देखता, वह का माथा पे हाथ धर के देखता, बीमार को तसल्ली देता, वह के मरे दुआ करता। जनाजान में जाता, गैल में जाते वक्त कोई रोक के बात कर तो वह की बात सुनता, कोई कान में बात कहतो तो वाय ना हटाता जब तक आप ना हट जातो। मुसाफा को पहले आप हाथ करता, जब तक हाथ ना छोड़ो जातो, जब तक दूसरा हाथ ना छोड़तो, जब तक आप हाथ ना हटाता। सब बैठा होता तो कभी आगे निकल के ना बैठता। आप ईसाई और यहूदीन से तोहफ़ा ले लेता, अलबत्ता मुशरिकन से और काफिरन से तोहफ़ा कबूल ना करता। मिस्र का बादशाह मकू कसमती ने आपको तोहफ़ा में खच्चर भेजो, आपने कबूल फरमायो और जंग हुनैन पे वापस ही सवार हुआ। पर जब आमिर बिन मालिक ने घोड़ा भेजा तो आपने इनकार फरमाया और फरमाई, हम मुशरिकन से हदियो ना लेवा। आपको जो तोहफ़ा ताइफ मिलता अपना सहाबिन में तकसीम फरमा देता। अपनी ऐसी तारीफ़ पसंद ना करता जब दूसरा नबीन की कमी लगती। बालिकन से बहुत प्यार और नरमी से बात करता, उन्होंने ना झिड़कता। गैल में मिल जाता तो अपने साथ सवारी पे बिठा लेता, गोदी में ले लेता, उनका सिर पे हाथ फेरता, उनसे आप सलाम करता। बड़ा बूढ़ान सो आजिज़ी से मिलता। फतह मक्का के बाद
अबू बकर का बूढ़ा बाप ने कही कि वो भी मुसलमान होना चाहवे है। तो आंधा बाप है लेके हज़रत अबू बकर आपके पे आयो। आपने फरमाई, बूढ़ा को काई को तकलीफ़ दी, मैं आप या के पे चलो जातो। ऐसे ही एक सहाबी को भाई शहीद हो गो, आपको चलना फिरना में तकलीफ़ ना होवे, तो सहाबी अपनी बूढ़ी माँ है आपके पे ले आयो कि आप अपना घर में रह के वह बुढ़िया सो ताज़ियत कर लो बेटा की। अपर आपने फरमाई, बूढ़ी माँ को तकलीफ़ दी, मैं हूँ नहीं जाके ताज़ियत करिया। तो हज़रत आयशा फरमावे हैं कि चाहे कोई सहाबी बुला तो, चाहे कोई घर को आदमी, आप जवाब में कहता लब्बैक, मैं हाजिर हूँ। आप सहाबिन से फरमाता, मेरे आगे काई की चुगली मत कर करो, मैं चाहूँ हूँ कि जब दुनिया सो जाऊँ तो सबन के मही से साफ दिल लेके जाऊँ। कभी भी कोई मांगण वालों आतो, आप कभी भी वालों ना करता, अपने पे ना भी हो तो काई से उधार दिवा देता और वह उधार आप चुकाता। एक पर कोई नाज लेन को आगो, आपने वालों कहीं से उधार नाज उचवा दियो। अब कर्ज देने वालों जाने कर्ज दियो हो, वो मांगण आगो कि मेरा उधार चुकाओ, आपने हुक्म दियो कि या का कर्ज उतार दो और इतनो ही हमारे मही से और दे दो। आपने ऐलान कर रखो हो कि कोई मकरूज मर जावे तो वह का कर्जा है हम उतारेंगा, और जब कोई माल छोड़ के मरेगो तो वह को माल वाकर वारिसन को होएगो। सहाबी सईद खुदरी कहवे है कि आप पर्दो करन वाली छोरी की तरह शर्मीला हा। हज़रत आयशा फरमावे हैं कि काई की कोई बात अच्छी ना लगती तो आप वह को नाम लेके मना ना करता, बल्कि सबन से ऐसे कहता कि वो आदमी आप समझ जातो कि वह ने गलत काम करो है। आप अपनी जान पे तकलीफ़ झेल लेता, अपर शर्मा शर्मी में काई सु काम की ना कहता। आपका सफ़र की तो कोई मिसाल ही ना है। गंवार आदमी की बदतमीज़ी बर्दाश्त करता, ना उन्होंने झिड़कता, ना उन्होंने अपने पियान से मना करता। एक बार एक अराबी आयो और आपकी चादर जो आपका कंधान पे पड़ी ही ऐसा ज़ोर से झटको दे के हिलाई कि आपकी नाड़ पे निशान पड़ गो। अराबी बोलो, मोहम्मद, ये जो तेर पे माल है, ये जो माल तेर पे है, ये ना तेरो है ना तेरे बाप को, या में से मुँह को भी ऊँट भर के दे। आप थोड़ी देर चुप रहिया, फिर फरमाई, बेशक माल अल्लाह को है और मैं वा को ग़ुलाम हूँ, और वालों ऊँट भर के जो और खिजूर दे दी। ताइफ का सफ़र में आप पे इतना पत्थर बरसाया कि आपका जूता खूनन से भर गया और आप बेहोश होगा। अपर नुई दुआ करी कि अल्लाह, मैं इनके मारे बद्दुआ ना करूं, कहा तो इनके औलादन में से कोई मुसलमान हो जावे। माफ़ करन में कोई आपकी बराबरी ना कर सके। ओहद की जंग में आपका 4 दांत शहीद कर दिया, मुँह खूनम खून हो गो, सिर भी फूट गो, आप एक खड्डक में गिर गा। सहाबी ने कही, काफिरन के मारे बद्दुआ कर दो, अपर आपने फरमाई, मैं लानत करन के मारे नबी ना बनायो। हब्बार जाने आपकी बेटी ज़ैनब की नेज़ो मारो और उवाई दुख से मर गई, आपके पे माफ़ी मांगन को आयो तो आपने माफ़ कर दियो। एक पर आप एक दरख्त के नीचे लौट गया, तलवार आपने दरख्त की डाल पे लटका दी, आपकी आँख लगी। एक मुशरिक गौर्स बिनल हरास आयो, आप गुस्ताखी से जगाया और तलवार निकाल के बोलो, अब तो है मोसू कौन बचाएगो। आपने बगैर डर पे इत्मीनान से फरमाई, अल्लाह। काफिर का दिल पे दहशत छा गई, वो कांपो और तलवार वा का हाथ से गिर गई। अब आपने तलवार उठाई और वा के तलवार लगा के कही, अब तो है मोसू कौन बचाएगो। वो तो पहले ही हैरान परेशान खड़ो हो। आपने फरमाई, जब भाग जा, मैं बदलो ना ले हूँ। हमेशा सच बोलता, कदी कहने मजाक में भी आप झूठ बोलता ना सुना। अबू जहल भी नुई कह करियो हो कि मोहम्मद, मैं तो झूठो ना कहूँ, अपर तेरी बात ने मेरे दिल ना माने। दुश्मनन पे भी रहम करता, कैदी आता तो उनका खान पीन को ध्यान रखता, उनका कपड़ान को ध्यान रखता। बदर में जो कैदी आया वो आप कह कर रहा कि मुसलमान अपना बालकन सुघाणो हमारा ध्यान रखा हाँ।
आप अपनी सारी बीबीन को एक जैसा ध्यान रखता, काई को इजाज़त ना है कि कोई दूसरी सौगन की चुगली खावे, कोई दूसरी सौगन की चुगली आपसे करे। हज़रत आयशा ने हज़रत सफ़िया के बारे में यूँ कह दी कि वह को कद छोटो है, तो आपने नाराज़ होकर कही, आयशा तने ऐसी बात कह दी है कि समुंदर में गिर दी जावे तो सारो पानी कड़पो हो जावे। सब बीबीन का आराम और सुकून को ख्याल रखता, इतनी बीबी ही, उनकी खिदमत गुजार लौंडी भी ही, आपका अपना इतना सारा ग़ुलाम हा कि आपने रिहलत के वक़्त 40 ग़ुलाम आज़ाद कर दिया। पर आप अपना काम ने आप कर लेता, जूती काट लेता, दूध काढ़ लेता, अपना कपड़ान पे थेगलो लगा लेता। एक बार जब आपके साथ सफ़र में हज़रत सफ़िया ही ऊँट पे चढ़न के मारे, हज़रत सफ़िया ने ऊँट पे चढ़ना हो तो आपने अपना गोडो आगे कर दियो। हज़रत सफ़िया गोडा मुबारक पे पाँव रख के फिर ऊँट पे चढ़ गई। सारपान वो रहवे है जो ऊँटन की मुहार पकड़ के आगे आगे चले हैं। वो ऐसा शेर पढ़ता जिनकी आवाज़ ने सुन के ऊँट तेज़ तेज़ चलने लग जाता। ऐसा शेरन सु हदी कहवा हाँ। जब सारपान हदी पढ़न लगा तो आपने फरमाई, देखियो कांचा ने मत तोड़ दियो। मतलब ये कि तिहारा शेर ने पढ़ के ऊँट तेज़ तेज़ चला तो कहीं बीबी ने चोट ना लग जावे, दलक ना लग जावे। अल्लाह ताला को कुरान पाक में इरशाद है, जाको मतलब नो है कि जे 7 समुंदर को पानी स्याही बन जावे और सारी दुनिया का दरख्त ने कलम बना ले और उन्होंने से अपना रब की बात ने लिखो तो कलम और स्याही ख़त्म हो जाएगा, तिहारा रब की बात ख़त्म ना हो सा। बेशक लारेब अशहदु। अल्लाह के बाद हम बात करें वाका रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो जब बात ऐसी ही समझ आवे है कि लिखन वालों लिख तो जावे, हाथ थक जावे, पर आपकी सिफत पूरी तरह ना गिनवा सके। 63 साल की ज़िंदगी, पर इतनी बात 1450 साल से दुनिया आपके बारे में लिख रही है, पर कोई साल ऐसा ना गयो कि आपके बारे में कहीं ना लिखो जा रहा हो। काई ने ना कही कि इतनी बार आपके ऊपर बात कर चुका हो, अब मत लिखो। दुनिया में जहाँ इंसान पे सबसे ज़्यादा लिखो गयो वो हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बेशक अल्लाह ने अपना वादो पूरो करो, व रफ़ाना लका ज़िक्रक, और हमने आपको ज़िक्र ऊँचे और मुबारक करो।